السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، سن 2021 جانے کا وقت آ چکا ہے، آخری سورج غروب ہو چکا ہے اور سن 2022 کا اب سب کو انتظار ہے اور چند گھنٹوں بعد سن 2022 کا آغاز ہوگا۔ اور جب بھی کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، جشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ سال بھی پرانا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا مہینہ گزرتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، اور وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ اور جب وقت گزرتا ہے تو وہی سال کے جس کے جانے پر یا وہی وقت کے جس کے گزر جانے پر ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، وہی وقت ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ سن 2021 میں ہمارے لیے اگر دیکھا جائے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، تو یقیناً ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے جو ہم سے بچھڑ گئے۔ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں تباہی مچی، معیشت کو بڑا نقصان پہنچا، پاکستان بھی اس سے متاثر رہا اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر سننے کو ملتی تھی اور ایک ڈر سا رہتا تھا دل میں کہ کہیں کسی کی خدا نخواستہ اس طرح سے کووڈ سے موت کی خبر نہ سننے کو مل جائے۔ جانا تو سب کو ہے، کوئی پہلے چلے جاتے ہیں، کوئی بعد میں چلے جاتے ہیں، لیکن جانے والوں کا یقیناً دکھ بہت ہوتا ہے اور جو چلے جاتے ہیں ان کی یاد ہمیشہ دل میں موجود رہتی ہے اور ہم ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے رہتے ہیں، اور جو چلے جاتے ہیں اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ان کو سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ سن 2020 جب ختم ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہمیں ایک خوشی اس بات کی تھی کہ سن 2021 میں پاکستان میں ویکسین آ جائے گی، کووڈ کی ویکسین آ جائے گی۔ پھر جیسے ہی 2021 شروع ہوا، انتظار شروع ہو گیا جی کب آئے گی۔ پھر فروری کے مہینے میں پتا چلا کہ جی پہلی کنسائنمنٹ آئی، پھر کچھ وقت لگا۔ اب 2000 جب ہم 22 میں داخل ہونے جا رہے ہیں تو کووڈ اب بھی موجود ہے، بلکہ ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں، خاص طور پہ برطانیہ میں اور امریکہ میں کووڈ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو نیا ویریئنٹ ہے جس کا نام اومیکرون ہے، اس سے دن بدن لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو اب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے تسلی بخش ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہاسپٹلائزیشن بہت کم ہے، لوگ افیکٹ ضرور ہو رہے ہیں لیکن ہاسپٹل تک جانے کی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ اس سال میں ہمارے لیے واٹ از ٹو لک فارورڈ ٹو، یعنی کہ 2022 میں ہمیں کیا دیکھنا ہے، کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے، کیا اندازے ہیں، کیا ستارے کہتے ہیں، یہ ہم آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ سال کا یہ آخری پروگرام ہے تو جاتے جاتے ہم نے سوچا کہ کچھ یہ انفارمیشن ان ایکسپرٹ سے حاصل کی جائے جو اپنے کام کے ماہر ہیں، اور ہمیں ہر موقع پر، عید کا موقع ہو، نیا سال ہو، تو ہم ہمیشہ ان سے ضرور یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں وقت دیجیے تاکہ ہمارے دیکھنے والے، سننے والے جان سکیں، اور جس کے لیے جو اچھی خبر ہے کچھ اپنے سٹارز کے حوالے سے یا ویسے ملک کے حوالے سے، مختلف شخصیات کے حوالے سے وہ جان سکیں۔ آج کے پروگرام میں جی ہمیں جوائن کیا ہے معروف ایسٹرولوجسٹ معظم خان صاحب نے۔ معظم خان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور یقیناً ہمارے ساتھ ہمارے تمام اس طرح کی اوکیزنز پہ پروگرام کی رونق ہوتی ہیں۔ سامیہ خان صاحبہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ایک طرف ہیں معظم خان، ساتھ ہیں سامیہ خان، اور وزیر اعظم ہیں عمران خان۔ تو آپ دونوں کا جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ سب سے پہلے سامیہ آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سن 2021 سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے لیے کیسا رہا؟ نہ پوچھیں، کیونکہ 2021 یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات کر دوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جی آپ کے جاننے والوں کے لیے، اور آپ کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں علی، کہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے، انسانی اندازوں کا علم ہے۔ 2 + 2 = 4 کا علم میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن یہ غلط بھی اندازے ہو سکتے ہیں، انسانی اندازے ہیں، اور جس پیش گوئی کی دلیل دے کے بات کی جائے تو اسے علم لینا چاہیے، کیونکہ الہام وہی یہ پیغمبروں کو ہوتے ہیں، یہ ہم جیسے گنہگاروں کو نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تھوڑا سا سے پیچھے آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گی۔ 26 دسمبر 2019 کو ستاروں نے آسمان پہ ایک ایسا نقشہ بنایا تھا جو کہ 9/11 کے ٹائم پہ لگا تھا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا دنیا وار زون میں گئی، اور بہت سارے مسلمان تو بہت عرصہ پستے رہے، ایک عجیب سا دور وہ شروع ہوا تھا۔ اسی طرح جو ہے جب اس میں ہم آتے ہیں کہ وہی نقشہ 19 دسمبر کو جب میں نے پڑھا تو یقین کریں کہ جب میں ہر پروگرام میں جاتی تھی میں ایک ہی بات کرتی تھی کہ کاش میں غلط ثابت ہو جاؤں۔ مجھے اندھیرا نظر آتا ہے، مجھے وار زون نظر آتا ہے، مجھے کرفیو لگتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سب کچھ غلط ہو جائے، کہ جن لوگوں کو روشن پاکستان نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ شاید وزیر اعظم عمران خان کی سپیچ آ گئی تھی جنوری میں کہ ہم ریکارڈ ترقی کریں گے، لیکن وہ کرونا تھا، یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا اس کا نام کرونا ہوگا۔ تو 2020 بھی کنٹینیوٹی تھا، 2021 بھی میرے علم کے حساب سے کنٹینیوٹی تھا۔
تو اس وجہ سے 2021 میں بھی جوپیٹر اپنی بلیسنگ زمین پہ نہیں دے سکا تھا. تو یہ ضرور ہے کہ 2021 آپ لوگوں کا تو شاید کو اچھا گزرا ہو, پر میرے ساتھ تو وہ چکی چلی ہے نا. اور آپ نے دیکھا کہ یہ باتیں بھی ہم نے کی تھی کہ نہ مجھے تو کوئی مہنگائی میں ریلیف نظر آ رہا ہے ابھی فی الحال جو ہے, اور حکومت کے لیے بدستور ہم نے کہا تھا کہ 21 میں مشکلات رہیں گی, بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 21 میں گھر کے اندر سے لنکا ڈھائی جائے گی, اور گھر کے اندر سے ہی جو ہے نا گھر کو چراغ, جو گھر کے چراغ ہی آگ لگائیں گے. اور آپ کو بھی پتا اسی زمانے میں 3 اسکینڈل سامنے آیا تھا 21 میں. اس کے بعد جب آگے اب آتے ہیں تو 2022 میں 2022 کے بارے میں آنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا ذرا معظم صاحب سے بھی پوچھ لیں. معظم صاحب, آپ کا یہ سال سن 2021 کیسا رہا؟ 2021 دیکھیں جہاں پر میری انڈیویجول لائف ہے تو یہ اللہ کا بہت کرم رہا ہے کہ جب سے میں پیدا ہوں اور آج تک مجھے کبھی زندگی میں ایسا نہیں لگا کہ کبھی کوئی ٹف ٹائم آیا ہو, نیور ایور. لیکن 2021 جو ہے اس میں آئی لاسٹ مائی فادر اینڈ مائی بردر, ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. اس اعتبار سے بہت چیلنجنگ تھا, بہت کریٹیکل تھا, کیونکہ اس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کا حکم ہے. مگر جو انڈیویجول لائف ہے اس میں کوئی ایسی پرابلمس نہیں تھی. ایسا نہیں ہوتا, مطلب آن دا ہول جو ہے وہ آپ کے میرے لیے ٹھیک تھا, آپ کے لیے بہتر رہا. اینڈ یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو 2022, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جاتے جاتے ایک اداسی والا فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ 2021؟ دیکھیں جب آپ کسی کا حرض کو پڑھتے ہیں تو وہ انڈیویجول ریڈنگ اس کی الگ ہو سکتی ہے, لیکن میں کیونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ 2021 جو اینڈ ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی ایسا اداسی یا کوئی نیگیٹیوٹی یا کوئی نیگیٹو انرجی یا کوئی نیگیٹو ویو ایسا کچھ نہیں تھا. نیگیٹو میں. اب آتے ہیں سامیہ 2022 کی طرف. تو 2022 میں کیا آپ کو کچھ چیزیں بدلتی ہوئی؟ ابھی آپ نے کہا کہ جی کچھ اپنوں میں سے ہی کسی نے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ایسا کر دینا تھا 2021 میں کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہونا تھا. تو آپ نے کہا چراغ کے بجھنے کی آپ نے بات کی, تو کیا چراغ نے بجھنا شروع کر دیا ہے یا ابھی بجھنا شروع نہیں کیا؟ بالکل اپنے صحیح سوال پہ لے کے جا رہے ہو آپ. دیکھیں علی, جو ایک تو پاکستان کے لیے پہلے ایک اچھی بات کر دیں تاکہ لوگ ڈرے نا کہ پاکستان کا ستارہ جو 29 دسمبر 2022 سے جو بگننگ ہو رہی ہے, 21 سے جو بگننگ ہوئی ہے, 29 دسمبر 2021, میرا یہ ماننا ہے کہ میرے ملک کا نصیب یہاں سے کھلنا شروع ہوگا, پاکستان کا نصیب یہاں سے کھلنا شروع ہوگا. اب مجھے ایک اچھی امید بن رہی ہے کہ یہاں سے اللہ پاک کرم کریں گے. حکمرانوں نے تو وعدے پورے نہیں کیے, لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, تو عوام بیچاری تو جو پسی جو ہے. اب آپ ادھر جو ہم حکومت پہ آتے ہیں تو 19 جنوری 2022 سے جو مجھے نظر آتا ہے کہ 3 لوگوں کے گرد اور گھیرا تنگ ہوتا ہے. ان میں سے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, ان میں بزدار صاحب ہیں, ان میں شیخ رشید صاحب ہیں, کہ ان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوتا ہے. حکومت کے لیے ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم موجود ہے. اور میں بلکہ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب کی طرح اقتدار تو پھر بھی مل جائے گا. ساکھ بچانے کی کوشش کر لیں, کیونکہ جاتے جاتے ساکھ اگر ڈیمیج ہو گئی تو جیسے پیپلز پارٹی کو 10 سال لگے کم بیک بنانے میں, تو پھر ان کو بھی اتنا ٹائم لگ سکتا ہے اپنی واپسی کے لیے. جو ہے انہوں نے بہت سٹرگل کی ہے. 19 جنوری سے پرائم منسٹر صاحب کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا مشکل وقت شروع ہو جائے گا, وہاں سے گھبرانے کا وقت شروع ہو جائے گا. اب وہ گھبرائیں, اب وہ گھبرائیں گے. معظم صاحب, کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ جنوری سے ہی کام شروع ہو جائے گا؟ اس کو 2 تناظر میں دیکھیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اس وقت 2022 سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے کیسا ہے. میں نے اس پر 2 ویڈیوز بنائی ہیں. ایک میں نے بنائی تھی کہ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہوگا, اور دوسرا میں نے بتایا کہ 2022 یہ کیسا ہوگا. تو میں نے اس پہ لکھا 2022 جو ہے خوشیوں کا سال. پاکستان کی جو عوام ہوگی اس کے لیے خوشیوں کا سال 2 اینگل پر ہوگا. سب سے پہلے کہ جو ہم نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں ٹوٹل ریسٹرکچرنگ کی ہے اپنی لائف کی, اور ہم پیچھے سے پیچھے ہی گئے ہیں. کرونا آنا تھا, ریسٹرکچرنگ ہونی تھی, اب وہ جو بلڈنگ ڈھہنی تھی وہ ڈھہ گئی. اب آہستہ آہستہ ہمیں اس کی تعمیر کا ٹائم ہوگا, اور یہ جب ہم تعمیر کریں گے تو اس میں ہمیں ٹائم لگ جائے گا مئی جون تک کا. اچھا, بجٹ تک؟ ہاں, بجٹ تک. لیکن یہ بات یاد ہے کہ جو اس وقت فیز شروع ہو چکا, جس طرح سامیہ نے کہا, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو دسمبر اینڈ سے فیز شروع ہوا ہے اور یہ جب مئی تک رہے گا, اس میں گورنمنٹ کے لیے بہت شدید کرٹیکل سچویشنز ہوں گی. ڈوئل اینڈ پہ, کیونکہ جوپیٹر جب بھی اپنے گھر میں گھوم کے آتا ہے ڈوئل اینڈ پہ ڈیسیجن دیتا ہے. ڈیسیجن ہوں گے لیگل. اگر آپ دیکھیں اس وقت لیگل ڈیسیجن ایک تو نواز شریف کے اگینسٹ آ گیا. یہ ڈیسیجن جب بھی آتے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اپوزیشن ہے یا یہ رولنگ ہے. کچھ ایسے ڈیسیجن جو اینٹی آئیں, گورنمنٹ کے اینٹی اور گورنمنٹ پر, ایسے کوئی ڈیسیجن میں تک آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ بہت بڑا کیاس کریٹ ہو رہا ہے. اور یہ کیاس کریٹ ہوتے ہی
क्योंकि पाकिस्तान का ये जो एक दफा सिस्टम है इसको हम चैनलाइज करके सिंक्रोनाइज करने के बाद पाकिस्तान की बेहतरी का दौर शुरू होगा। 2022 पाकिस्तान में शदीद इन्वेस्टमेंट्स का साल है। अच्छा, तो ये इन्वेस्टमेंट्स, इसका सेहरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी इंटरनेशनल यही पर्सनैलिटी को मैंने जाएगा? इसीलिए कहा कि ये जो हमें मई तक का टाइम है इसको हमने हर हाल में गुजारना होगा। इसमें काफी सारी चेंजेस आएंगी फॉर बोथ, गवर्नमेंट के लिए भी और एंटी गवर्नमेंट भी, दोनों के लिए। हाँ, दोनों के ठीक, लिए। लेकिन सामी अभी जो आपने 19 जनवरी की बात की, कहीं आपने इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं कही है कि जो ये अभी गुज़श्ता 1-2 हफ्ते से ये चल रहा है मामला कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी है, वो वापस आ जाएंगे और आकर फिर यहाँ पर चाहे उनको केसेस का सामना करना पड़ा वो करेंगे, कहीं इसके पीछे ये रीजंस तो नहीं मुझे है? बिल्कुल नहीं पता। मेरे तो पाकिस्तान के जायचे में जो मुझे पता है कि मैं 2 सितारों ने अपना घर बदलना है, मैं उनके तनाजुर में कह रही हूँ। और ये मौजम खान बिल्कुल साहब भी माहिर इल्म इससे एग्री करेंगे। 19 को 2 सितारों ने घर बदलना है। उन्होंने कुछ को घबराने की लिए अब जो है टफ टाइम देना चुनेंगे, है किसी को और घबराने के किसी लिए को चुनेंगे। रिलीफ। हाँ, नवाज शरीफ साहब जब अपने दौरे इक़्तिदार में थे अली, उन्होंने बहुत टफ, और मैं तब भी रिपीटेडली आपके प्रोग्राम में तो मैं हर बारी आई हूँ, मर्तबा, हाँ। और तीसरी बार वजीर आजम बनने की भी पेशगोई मैंने आपके प्रोग्राम में की थी, नाहली की भी की थी। -1 आपने दोहराया भी था, मेरे मुंह से निकलवाया था। अब -1 है सर अब ये जरा वक्फे के बाद ये बड़ा आम सवाल है जी। ये इस पर जी मैं सामिया से और फिर मौजम साहब से भी पूछूंगा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। बेहतरीन मौका है क्योंकि सामिया ने भी खुद बताया कि उन्होंने -1 की जब बात की थी तो फिर उसके बाद वो सच भी साबित हुई -1 की बात। और अभी जब मैं सवाल दोबारा से पूछूंगा तो पहले सामिया वही कहेंगी जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में इब्तदाइये में कहा था, और वो सेफ जोन होता है और सेफ जोन बहुत जरूरी होता है। और ये ओवर द इयर्स मैंने सामिया में देखा है कि ये चेंज आया है, क्योंकि एक वक्त था कि जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो अब ये सब कहना जो है ये बड़ा जरूरी हो जाता है। जिस तरह हम प्रोग्राम से पहले जो है वो डिस्क्लेमर चलाते हैं, इसी तरह से ये डिस्क्लेमर भी बहुत जरूरी होता है। वेरी राइट ऑब्जर्वेशन, वेरी तो सामिया -1 राइट एंगल पे राइट बात करनी है। और ये बताइए कि -1 की आपने बात की थी, तो क्या दोबारा भी अब ये कोई -1 वाला है, कोई इस तरह का फॉर्मूला? मैंने तो देखिए वही बात आप करेंगे, बिटवीन द लाइन जो एक जुमला बोला हमने कि इक्तदार बचाने की बजाय साख को बचाएं, ये नौ मुद्दत पूरी करने के बाद इद्दत पूरी करनी पड़े, तो ये खतरा मौजूद है सर उनके लिए। बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है उनको। अगर मैंने तो पहले ही कहा कि ये इस वक्त इजी ना ले सितारों को। अब ये सितारों के ट्रैप में जब तक जुपिटर बचा सकता था उसने साथ छोड़ दिया इस 29 को। -1 दूसरी तरफ भी तो हो सकता है। देखिए ना, दो अभी शख्सियात ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्कशन में हैं, और एक इमरान खान साहब हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं जी। दोनों तरफ जो है वो PMLN कहती है जी, उधर यहाँ अगर बात होती है एक्सपर्ट्स की तो बात करते हैं जी कि गवर्नमेंट की तरफ से इमरान खान साहब -1, और उधर से ये कि वहां पर शहबाज शरीफ साहब की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है तो वहां से भी -1। तो अगर ये -1 है तो ये इधर है या उधर है? नहीं, हुकूमत में से तो तब्दीली होनी है। रैपिड चेंजेस ने आना है 2022 में। जिस तरह सर ने बात की कि मैं भी इसको ऐसे ही बार बार 5 दिन तो हो गए बोलते हुए कि यूं समझ लें 2022 जो नया घर बन रहा है आपका, मेरे हिसाब से वो नई कंस्ट्रक्शन नवंबर तक कंप्लीट हो चुकी होगी, इस नवंबर तक जो है। और जो नई चीजें तब्दीलियां आ चुकी होंगी तो आप समझिए कि उसके बाद आपने कहा कि ये 2021 के नवंबर तक, नहीं, सॉरी 22 के 2022 नवंबर में कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी होगी इंशाल्लाह। आपके इशारे तो मतलब जिस तरफ हैं वो तो तारीखें बड़ी खतरनाक तारीखें हैं, और महीने आप बता रही हैं 2022। मुझे नहीं पता सर, मेरे पास हर चीज की दलील मौजूद है। ये आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने भी पहले भी यही कहा। आप दोनों का सियासी विजन है, मेरा नहीं है। नहीं, मेरा सियासी विजन नहीं है। ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली रीडिंग है। सबसे पहले ये है कि 2022 हर हाल में डिसीजंस का साल होगा, और कुछ ऐसे डिसीजंस दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर करने पड़ेंगे जिसकी वजह से सेटअप में तब्दीलियां आई, और तब्दीलियां 2022 में हर हाल में सेटअप में तब्दीलियां आएंगी। सेटअप से मुराद ये कि जिस वक्त करंट गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट। तो ये -1 वाली जो बात अभी हो रही है ये क्या किस तरफ आपको लग रहा है कि क्योंकि एक तरफ नवाज शरीफ साहब की ये भी सालगिरह उसी तरफ ही आ रहा है ना। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब, मैंने पहले भी बहुत दफा कहा है कि जब से ये आए हैं इनका दोबारा से पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होकर एज ए
प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा डेजिग्नेशन ले लेना जहां पर ये फुल ऑन अथॉरिटी होंगी, ऐसा नहीं होना। नवाज शरीफ साहब। हाँ, ये तो पहले ठीक है। एंड हो गया। और ये जो अभी सिचुएशंस बड़ी ट्रिकी है, इसमें मैं ये कहूंगा कि जो शायद आप देख रहे हैं, जो आपको सिनेरियो देखने में डिफरेंट नजर आ रहा है, जब वो इसका डिफरेंट डिसीजन हो तो ये और ही एंगल पर आ जाए, तो आपको ये लगे कि जो हम देख रहे थे ये बिल्कुल उसके एंटी है। और जिसे पंजाबी में कहते हैं कि दिखाई सजी ते मारी खबी, तो इस तरह का सेटअप होगा ये आने वाले 4-5 महीनों में। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि हर हाल में सेटअप चेंज होगा। सेटअप 2022 में चेंज सर हो गई ये होगा। अब So- ये तब्दीली तयशुदा है सितारों की लैंग्वेज में। सितारों की लैंग्वेज में क्या ये 2022 इलेक्शन का साल है? हर हाल में देखिए, या इलेक्शन इलेक्शन या इलेक्शन सिलेक्शन, वही बात है, इलेक्शन तो बड़ी दूर की बात है ना, हम इलेक्शन दूर की की तो बात है। इलेक्शन की तो हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, सेटअप में चेंज, सेटअप की तब्दीली सर, सेटअप आप भी की तब्दीली। समझिए, आप इसको समझिए, ये समझदार कंफर्म आदमी है। हैं। मैं बार बार इसलिए हाँ, पूछ रहा हूं हम कि बार-बार यही कह रहे इलेक्शंस हैं। दूर हैं अभी। तो अभी ईवीएम भी दूर है, इलेक्शंस भी दूर हैं, ये सब दूर है। कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड सडन डिसीजन या सडन ब्लास्ट होगा जिससे आपको लगेगा कि ये गेम किस तरफ चल पड़ी। तो मैंने इसलिए कहा कि दिखाई सजी ते मारी खब्बी, कोई इस तरह की गेम आपके सामने यानी कि आएगी। सूरत हाल खतरनाक है। और शेख रशीद साहब और बुजार साहब के लिए भी, जैसे कि सामिया ने भी कहा, देखिए वो असल में उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट हो सकती हैं, इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल को हम इसलिए नहीं लेते कि जब इमरान खान की बात होती है तो इमरान खान की भी 2 डेट ऑफ बर्थ हैं, तो डुअल के साथ हम कैलकुलेट नहीं करते, हम पाकिस्तान का और उसको पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां आने वाली, हम उसको लेकर फिर चलते हैं। तो इसलिए जब सेटअप चेंज होगा तो बुज़दार भी सेटअप का हिस्सा है और शेख रशीद साहब भी सेटअप का हिस्सा है। ठीक, इकोनॉमी हमारी आपको क्या लगता है इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी? अच्छा, ये बड़ा प्यारा सवाल आपने किया। 2021 में जैसे मुझे खतरा था कि पाकिस्तान को आइसोलेटेड कर दिया जाएगा, जिसकी गूंज आपने सुनी भी, हमारे खिलाफ अलायंसेस भी बनाए गए और हमारे थिंक टैंक ने अक्लमंदी कर ली कि हम छोटे मुल्कों की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। लेकिन ये वाला साल वो साल होगा जो पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को बड़ा इफेक्टिवली गुड कर देगा, और जो है जो कुछ ममालिक आप खुद देखेंगे कि अब हमारी तरफ बढ़ेंगे दोस्ती का, जिसकी वजह से अंदरूनी मुल्क सरमायाकारी आएगी। मुल्क तो स्टेबल होने जा रहा है, अवाम को रिलीफ मिलते मिलते 1.5 साल लग जाएगा। ये एक जरा सैड बात है, लेकिन एटलीस्ट मुल्क की पोजीशन स्टेबल होने की तरफ चल पड़ेगी। एक बात और कह दूं सर कि अगर हम 11 अक्टूबर 2021 तक हम सरवाइव कर गए हैं, मुझे तो पाकिस्तान की सालमियत को खतरा लगता था। मुझे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खतरात लगते थे कि खुदा ना करे जो अजाइम है कि जी पेश गोइयां हैं कि हमें दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, वो खतरा 11 अक्टूबर मेरे हिसाब से 2021 तक का था। अगर हम उससे निकल आए तो इसका मतलब है कि अब वो टाइम आएगा कि 23 में हम अपना आप इंशाल्लाह मनवाएंगे, और क्योंकि ये कहानी अब गज़वा हिंद की तरफ भी चलनी है, तो मुस्लिम मुल्कों ने इकट्ठे भी होना है, शायद उन्हीं की वजह से सरमायाकारी भी आए, शायद कोई हमारा कर्जा भी उतार दे, तो जो है हम बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी तरफ लोगों का इत्तेहाद बढ़ेगा। अब आप सर की राय ले लें पहले। मौजूम साहब, इसमें अभी 2023 क्या, जैसा कि ईयर की बात की है सामिया ने, तो जब 2023 सुनने में आता है ना, तो वो फिर ज़हन में ये भी आता है कि अच्छा 2023 सब बेहतरी हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, 2023 में इलेक्शंस भी होने हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आगे यही सारा कुछ पीटीआई लेके चलेगी। देखिए, पहले हम 2022 की बात कर लें। जब हम पाकिस्तान का हाउस को पढ़ते हैं तो पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन में सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न इकट्ठे हैं एक जगह पर। ठीक, और राहु जो है वो टॉरस में है, केतु स्कॉर्पियो में है, मून एंड मार्स कैंसर में है। तो जब डबल असेंडेंट होता है ना, मून इन कैंसर, सन इन लियो, तो उस मुल्क को प्रॉब्लम सारों को आती हैं, मगर वो कभी भी आप ये समझेंगे क्लैप्स कर जाएगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। जुपिटर अब आएगा घूमकर पाइसेस में। पाइसेस जो जुपिटर है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, इट इज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो आई थिंक चाइना विल प्ले ए वेरी वाइटल रोल। तो इसमें ये भी हो सकता है क्योंकि मार्स को ट्राइन जानी है, तो चाइना हमारे कर्ज में कहीं ना कहीं कोई हमें ऐसा कंट्रीब्यूट करे कि हम उस कर्ज से निकल आए। ठीक है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं बार बार कि ये खुशियों का साल होगा इंशाल्लाह। दूसरी वजह ये कि उनकी वजह से अगर हम कोलैबोरेशंस में आते हैं तो ग्रेजुअली बेहतर हो जाएगा। ठीक, 2022 हर एतबार से इकोनॉमिकली पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करेगा ही। 2023 की जब हम बात करते हैं उसमें 2 मुल्क आजाद होंगे, सबसे पहले कश्मीर। अच्छा, हाँ, ये बात बड़ी दफा मैंने कही। 2023 में इसी साल से जोर पकड़ जाएगी। 2023 would be the freedom of Kashmir by all means। जबरदस्त। तो यहाँ से जब कश्मीर अलग होगा, अगर आप इस वक्त देखें तो इंडिया में अब उन्होंने एक तहरीक चलाई है कि मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस इनके अगेंस्ट चलाई है तहरीक। और अगर आप मेरे फेसबुक पे जाकर देखें या उस पर
यूट्यूब पे जगह, तो मैंने ये वीडियो 2 महीने पहले बनाई थी कि इंडिया में ये जो जनवरी और फरवरी होगा ये उनके लिए क्रिटिकल होगा, उनको डिफेम होने की तरफ लेकर जाएगा। जो उनका बॉस यानी कि मोदी, वो डिफेम होता चला जाएगा। उसका रहना हमारे लिए बायसे बरकत है इस वजह से कि उसके सब डिसीजन पाकिस्तान के फेवर में जाएंगे। अगर आप देखें जब से उन्होंने सेकंड सेशन अपना लिया या सेकंड टर्म में वो आए हैं, तब से कोई भी चीज उनकी फेवर में नहीं गई, हर चीज एंटी होते होते पाकिस्तान के फेवर में जी। मैंने कुछ और मजीद अहम सवाल पूछने हैं, जैसे कि ओमिक्रॉन को लेकर कि पाकिस्तान पर इसका क्या इफेक्ट होगा इन 2022, प्लस क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, देन फिर हम कुछ और स्टार्स पर बात करके प्रोग्राम को कंक्लूड भी करेंगे। सो द थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट जी, हमारे साथ रहिएगा, मुलाकात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सामिया, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब बड़े स्ट्रॉन्ग सितारे के मालिक हैं सर। आप देखें कि जेल की सजा या जिला वतनी भी बादशाहों की तरह काटते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं उनके बारे में पेश गोइयां करती थी कि सड़सती है, तो उनके लोग जाके उन्हें बताते थे, वो कहते थे अल्लाह मालिक है। और इस वक्त सितारा उनको मेजर रिलीफ दे रहा है, क्योंकि जो है और घर की खुशी भी देता है, वतन वापस आने की खुशी भी देता है, साख बहाल होने की खुशी भी साख बहाल होने की भी। अब ये जो है जमीनी इदारे कब तक कौन कहते हैं ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन ये वाला साल जो है उनके लिए एक तरह से उनकी साख की बहाली का साल। और मरीम नवाज साहिबा के लिए कोई फ्यूचर है? सर मरीम नवाज साहिबा के लिए कोई बिग अचीवमेंट मुझे तो समझ में नहीं आती। उस फैमिली में अगर मैं देखूं तो मुझे शहबाज शरीफ साहब का सितारा बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। जुपिटर 10वें में जा रहा है और वो ऐसे ही करता है कि कोई बड़ी आपको जिम्मेदारी दिलाता है। उनके बाद उनके बेटे का सितारा भी स्ट्रांग है, हमजा शहबाज का। उस फैमिली में मुझे ये ज्यादा स्ट्रांग नजर मरीम नवाज साहिबा ने। मौजम साहब, नवाज शरीफ का चैप्टर खत्म। दूसरी ये कि वो पाकिस्तान अगर आने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगेगा अगर नहीं आएंगे उनके लिए 2 ही जगह रह जाएंगी, क्योंकि जो प्लानिटरी कंडीशन है, क्योंकि अभी सैटर्न ने सन के साथ घूमना है 2 महीने, वो इसमें डिसीजन करेंगे 2 कंट्रीज का, वन इज गल्फ एंड सेकंड इज इंडिया। ये मेरी बात आपने याद गल्फ एंड इंडिया? हाँ, ये मेरी बात आपने याद रखनी, क्योंकि सन दैट विल बी डिजास्टरस अगर वो इसीलिए सुन लेना, सन इन कैप्रिकॉर्न एंड सन इन एक्वेरियस इज इन फॉल, इसलिए वो, और सैटर्न स्ट्रांग होता है। सैटर्न डील्स विद द गल्फ कंट्रीज, ये सऊदी अरेबिया सारा गल्फ वाला, और सन उसमें फॉल में होगा। अगर उन्हें फर्ज करें कि गल्फ नहीं एक्सेप्ट करता तो देन ही विल थिंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उस वक्त सन की पोजीशन ऐसी होगी। तो उनका ये पॉलिटिकल करियर, मैंने बार बार कहा, आगे जाकर ये स्ट्रांग नहीं होगा और उनके पाकिस्तान आने के चांसेस नहीं है। आई डोंट थिंक ही सो। एंड मरीम नवाज साहिबा का फ्यूचर, पॉलिटिकल उनका जो इसी तरह जो चल रहा है इसी तरह चले जाएगा। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डरी अगर आप ये कहें कोई अचीवमेंट्स आ जाएंगी, कोई ऐसा डेजिग्नेशन मिल जाएगा, वो नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब का आपको लग रहा है जिस तरह चल रहे हो वैली उस तरीके से चलते रहेंगे। अब आते हैं जी कोविड की तरफ, ओमिक्रॉन। क्या अब दुनिया में, जैसे कि बरतानिया में, अमेरिका में केसेस में मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? आपको क्या नजर आ रहा है 2022? अल्लाह मियां सारी कायनात पे अपना रहम करें। लेकिन जो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है इस वक्त में कि जिस तरह 19 का ग्रहण जमीन को हिट करके गया पाकिस्तान की, यहाँ पे भी हम भी इफेक्ट हुए। इस साल जो ग्रहण लग रहे हैं वो नजर नहीं आएंगे। एक 25 अक्टूबर वाला नजर आएगा, तब तक वैसे इस पे काबू पाया जा चुका होगा। तो मुझे पाकिस्तान में अल्लाह ना करे को बहुत जैसे लॉकडाउन या इस तरह की चीजें, अब मुझे वो नहीं इस साल नजर आती इंशाल्लाह। ये बहुत से लोगों ने मुझे, मतलब आप तो खैर बात कर रही है ना कि स्टार्स की, सितारों की रोशनी में, आम आदमी भी कहता है जी अब उस तरह से नहीं होगा, उस तरह से नहीं होगा। जब वो ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनकी दिल की ख्वाहिश है कि जो वो कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह दिल में डाल भी तो देता है ना बेचारे जो। जी मौजम साहब, मैंने तो जब से कोरोना आया मैंने तब से ही कहना शुरू किया कि दुनिया सारी इफेक्ट होगी, लेकिन पाकिस्तान वो खास एक मुल्क होगा जो सेफ रहेगा। अगर आपने देखे, इंडिया इज नॉट टू फॉर, यहाँ से अगर बॉर्डर देखे तो बॉर्डर के पास ये सारे के सारे मुल्क इफेक्ट हुए, पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। और ओमिक्रॉन पर मैंने अभी एक वो वीडियो भी बनाई है कि ओमिक्रॉन का कोई ऐसा नहीं होगा जिससे पाकिस्तान को किसी भी तरीके से इफेक्ट करे। इसकी रीजन क्या है? पाकिस्तान की मैंने पहले भी बात की कि डबल असेंडेंट है। जब डबल असेंडेंट स्ट्रांग होता है तो ये डिजीजेस इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, इसी वजह से नहीं की। अगर आप देखें, इंडिया इज नॉट टू फार। इंडिया में क्या कंडीशन थी, यहाँ से एम्बुलेंसेज जाती रही हैं उनको सेव करने के लिए। और पाकिस्तान में हालांकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बहुत केयर नहीं करते,
फिर भी ऐसे ही। अली मुझे एक पाकिस्तान इज अ बात डिफरेंट सिर्फ, कंट्री, कोई अल्लाह की खास रहमत है इस कंट्री पर कि ये होता रहेगा और ये इसी तरह चलेगा। अली आप ही के प्रोग्राम में लास्ट टाइम कहा था कि 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है, तो मुझे ये वबा नहीं लगती, मुझे ये वॉर जोन ही लगता है, मुझे ये मैन मेड ही लगता है। और जैसे कुछ मुल्कों को खत्म करने की प्लानिंग है तो ये उसी की तरफ उसी तरह काम चलेगा, क्योंकि सुपर पावर दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना है। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत की ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम शुरू हो गया, तो दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम 2021 से शुरू जी हो मौसम साहब, आप कुछ ऐड करना ये मैं यही ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, जब हम वर्ल्डली मंडेन एस्ट्रोलॉजी में पूरी दुनिया देखते हैं तो वाई पाकिस्तान इज सो सेफ, है ना। तो इसकी जो लॉजिक है एस्ट्रोलॉजिकली वो ये है कि जिस तरह सामिया ने कभी कहा कि पूरी दुनिया में अगर ये सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं तो पाकिस्तान, वाई पाकिस्तान इज सेफ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की कोई खास रहमत इस एरिया पर होगी जिसकी वजह से यहाँ से ग्रोथ शुरू होगी और ये डेवलपमेंट होगी। इसलिए हमने कहा कि 2022 जो होगा इसमें ओमिक्रॉन या इस तरह की कोई वबाएं पाकिस्तान में नहीं होंगी और पाकिस्तान ग्रोथ। और इंशाल्लाह ये भी उम्मीद करते हैं, दुआ है हमारी कि बारिश भी हो, बारिशें बड़ी कम। सैटर्न इन एक्वेरियस विद जुपिटर बारिश पानी स्क्वेड देता है। पानी इसलिए देखें ना, अगर आप पिछले 2 सालों से देखें तो अब ये 2022 में कुछ थोड़ा सा 2022 जुपिटर का साल है और इसमें मून के water साथ sign होगी आ रहा है। बहुत ज्यादा पानी गिरेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कुछ नेचुरल क्लैमिटीज वो सैलाबी खतरे अच्छा, जरा पिछले साल ने ये इसी, अब मैं पिछला साल इसलिए अभी से कहना शुरू कर दिया, खैर सही कह रहा हूँ क्योंकि बिकॉज कुछ लम्हे कुछ लम्हे ही रह गए हैं। तो 2021 में हमने ये T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारा, बड़ा दुख हुआ और बड़े अफसोस का इजहार भी किया सबने। तो ये इस साल दोबारा फिर होना है 2022 इसको इस तरह ना देखें, इसको अब ये देखें कि वो टीम जो दुनिया में कहीं कंसिडर नहीं हो रही थी वो वर्ल्ड टॉप पर आ गई, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। तो ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया में होना है 2022 में वर्ल्ड कप, पाकिस्तान बहुत अच्छा पार्ट प्ले करेगा क्योंकि इस वक्त फुल फ्रीडम होगा और मून से 5वें में जुपिटर होगा, तो 5वां होता ही स्पोर्ट्स का है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, मीडिया, काउंसलिंग, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, ट्रैवलिंग, डिजीजेस, इन सब के जुडिशरी, इन सब में बेहतरी लाएगा वो। ठीक, आपकी क्या राय है? मैं तो ये बिल्कुल इसी एग्री करूंगी। भी मैं स्टेटमेंट आपके चैनल के लिए दे भी रही थी कि स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट साल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, जो भी क्रिएटिव फील्ड के साथ लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत मेहनत करें। इस साल में उनकी लक बूम कर सकती है और क्रिकेट इंशाल्लाह हमारी दोबारा से कम बैक कर रही है। साथ में ट्रैवलिंग जो है इस वक्त ट्रैवलिंग बढ़ेगी। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा अपने जो है ना सारे भाइयों के लिए जो मीडिया से मुंसलिक हैं उनके लिए भी सवाल बड़ा जरूरी है, वरना बाद में यही गिला होगा कि साड़ा कोई सवाल नहीं। तो ये बताएं, मीडिया के लिए कोई बेहतरी आएगी इस साल? अभी आपको ये कहा कि ये जो 2022 होगा ये मीडिया का साल है। मीडिया, कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन, वर्बल कंस्ट्रक्शन, कंसल्टेंसी जहां पर आपको बोलकर पैसे कमाने हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली बूस्ट आएगा क्योंकि ट्रेड का साल होगा, ट्रेड ज्यादा बेहतर करेगा। जो इंडिविजुअल लोग होंगे उनमें टॉरियन, लियोस और ये जो है एक्वेरियस, इनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, इनके लिए टफ होगा। राहु स्क्वायर बढ़ाएगा। आपकी नजर? अच्छा, सितारे की नजर में मुझे पाइसेस को है कि पाइसेस अपना कॉन्फिडेंस कायम रखें, एक्वेरियंस थोड़ा सा ध्यान से चलें, हेल्थ का ख्याल रखें। और जो जिनके लिए बहुत अच्छा है ये वाला जो साल है, कुछ लोग जैसे कैंसेरियंस की लक उठेगी जो है, और उसके अलावा जो है टॉरियंस का क्या बताया आपने? टॉरियंस के लिए टॉरियन, लियो और स्पेशली ये जो टॉरस, लियो और एक्वेरियस, टॉरस अपनी शादियों का बहुत ख्याल थोड़ा रखें। सा। और ये साल दूसरी बात ये भी है कि ये जो 2022 होगा ये लव मैरिजेस का साल है। अच्छा, लव मैरिजेस का साल है। अच्छा, उस पे भी कल मैं देख रहा था, कल या परसों की एक रूलिंग भी आई है उसी से रिलेटेड। एक्चुअली रोमांस का साल है, विनर्स साल। लेकिन ये क्या आप भी समझती हैं कि टॉरियंस, एक्वेरियंस इनके लिए, पाइसेस के लिए अच्छा है? पाइसेस के लिए शुक्र है हाफ हो जाएगा, लेकिन दिमाग पे ज्यादा दही ना दिमाग की करें क्योंकि जो है वो फिर फिजिकल हेल्थ को ना डैमेज करे, क्योंकि वो बड़े उन्होंने पिछला साल सख्त काटा है पाइसेस, सख्त काटा होगा। एंड हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सितारा और स्ट्रांग हो रहा है। आप बताइए। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे हैं। अगर आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो इट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज़ द कमिंग 4 मंथ्स विल डिसाइड दैट। ठीक है, सो यू थिंक कि मुझे उनकी पोजीशन स्ट्रांग नजर आएगी। लेकिन ये प्रोग्राम के इख्तिताम की जाने बढ़ते हुए आपने एक्वेरियंस को और टॉरियंस को, इन सबको तो आपने डरा दिया है। नहीं, डरा नहीं दिया, थोड़ा मोहतात हो, थोड़ा एहतियात। डराने की बात नहीं। देखें, मजमूई तौर पर ये साल बेहतरीन साल होगा।
लेकिन जो थोड़ा सा जिनके लिए निस्बतन थोड़ा सा हम लाइट कहेंगे उनमें ये 3 है। यानी कि मतलब बाहर निकल के शॉट्स ना लगाएं, क्रीज में रह के खेलें। अच्छा सर, मैं भी जाते जाते एक जुमला बोल दूं, सर बेहतरीन कह रहे हैं, मैं अपनी लाइन ऐड कर दूं कि ये पिछले 2 सालों से निस्बतन कदरे आसान है। बहुत, मैं नहीं कहती कि हम आप ऊंचे सपने मैं नहीं दिखा सकती, फिर मुझे तो आप जिस आदमी ने 2 मेरी साल पट्टी चलवा 2 साल देंगे। अंधेरा देखा हो रोशनी में, तो सही बात है। ऐसे लगेगा लो जी मैं तो कुछ ठीक हो गया। चलें जी, अल्लाह ताला आप सबके लिए भी नया साल आपके लिए मुबारक साबित हो, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तशरीफ लाए, और तमाम देखने वालों के लिए भी हमारी ये दुआ है कि उनके लिए नया साल सन 2022 जो है वो बहुत सी खुशियां लेकर आए। परेशानियां, मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं, और वो चाहे 2022 हो, 2021 हो, 20 हो, 19 हो, हर साल में 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो वो तो आनी ही आनी है और उनका हमें मुकाबला करना ही करना है। और उसके लिए अगर हम ये समझें कि जी परेशानियां ना आए, मुश्किलात ना आए और साल गुजर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हम फिर मतलब बिल्कुल ही ना आंखें बंद करके जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें थोड़ा सा रियलिटी चेक लेना है और हमें उनका डट के मुकाबला करना है, और जो डट के मुकाबला करते हैं और उन मुश्किलात, उन परेशानियों में से गुजर जाते हैं, वही फिर कामयाब होते हैं और वही कामयाबियां समेटते भी हैं। सो आप सबको जी बहुत बहुत नया साल मुबारक। एक दफा फिर आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी जो इंतजामिया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, मीडिया के तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। और गवर्नमेंट के लिए तो कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अगर मेहनत करे और जो गलतियां हैं उनको ना दोहराए बल्कि उन पर बेहतरी लेकर आए, तो शायद वो भी दे कैन टर्न थिंग्स अराउंड एज वेल। मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले साल 2022 के पहले दिन के पहले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।